دوستوں آج ماہ رجب المرجب کی 17 تاریخ اور تیسرے بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم کا ہے، یا قہارو یا جبارو، اور ساتھ ہی ساتھ یا اللہ یا محمد کا بھی عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ساتھ ہی ساتھ یا اللہ یا محمد کا بھی وظیفہ پڑھا جائے گا۔ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ہر ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے کہ عمل ہمیں کرنا کس طریقے سے ہے، کیونکہ ہر وظیفے کی اپنی ترتیب اور اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو اس طرح سے نہ پڑھا جائے تو کامیابی ہمیں میسر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ والوں آج کا یہ خاص عمل آپ لوگ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اللہ والوں صرف ایک بار اس عمل کو کرنے سے، صرف ایک بار اس عمل کو آزمانے سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ یا قہارو اور یا جبارو کا عمل ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ اللہ رب العالمین کے جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ یقین کریں دشمنوں کی چیخیں نکال دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا جو دشمن ہو، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو اس بندے کی بھی چیخیں نکال کر رکھ دے۔ یا قہارو یا جبارو جو تکبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے نا، جیسے گورنمنٹ افسر ہیں، آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی سے رشوت مانگ رہے ہیں، آپ کا کام نہیں کر رہے، اس عمل کو پڑھ کر جائیں اور پھر معجزہ دیکھیے گا، اللہ رب العالمین کی شان کریمی دیکھیے گا۔ اگر کسی نے آپ کی جو ہے وہ دولت دبائی ہوئی ہے، کسی نے اگر آپ کی رزق کو دبا لیا ہے اور وہ قبضہ کر چکا ہے، اللہ والوں اس کا قبضہ بھی چھوٹ جائے گا۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے، لیکن اس عمل کو پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، اور جب اس عمل کو اس طرح سے پڑھا جائے گا تبھی آپ لوگوں کو کامیابیاں میسر آئیں گی۔ اور یا اللہ یا محمد کا بھی عمل پڑھنا ہے اللہ والوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی معجزاتی عمل ہے، کیونکہ اس طریقے کا وظیفہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے میری حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، میری دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں یقین کرے دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے نوازتا ہے، کیونکہ کامیابی کا راستہ اللہ رب العالمین ہی کھولتے ہیں۔ رب کی ہی قبضے قدرت میں ہمارا رزق کا نظام ہے، جو کہ کروڑوں سال پہلے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر وہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو آج اللہ پاک کو راضی کرنے کا ایک ایسا خاص اور مستند وظیفہ بتاؤں گا، اور آج ماہ رجب کی 17 تاریخ بھی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام تاریخ نہیں، یہ اتنا خاص دن ہے 17 تاریخ کا کہ اس دن اللہ پاک سے جو چاہو مانگ سکتے ہو، اللہ رب العالمین سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ جو حاجتیں مکمل نہیں ہو رہی آج وہ بھی یقین کرے مکمل ہو جائیں گی، کیونکہ کامیابی کا راستہ اللہ رب العالمین کے پاس سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ خاص تسبیح خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ اللہ والوں جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، جب آپ لوگ صرف سوچتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے لیے آسانی کر دوں، میں فلاں کو یہ وظیفہ بتا دوں، فلاں کے لیے میں آسانی کا سبب بن جاؤں، تو اللہ والوں اور جب وہ اس عمل کو پڑھے گا تو اس کے لیے آسانی بعد میں ہوگی، پہلے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ پاک پہلے اس کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما دے گا، یہ رب کا نظام ہے۔ تو لہٰذا لازمی اس کار خیر میں ویڈیو کو شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، جتنا دوسروں کے لیے آسانی کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 17 تاریخ اور تیسرے بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو آسانیوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔
तो दोस्तों आप लोग अगर चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह वालों इस अमल को छोड़ना नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि रजब का महीना देखते ही देखते आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। 16 दिन गुजर चुके हैं और आज 17 तारीख है। अभी भी वक्त है अल्लाह पाक को राजी कर लो, अभी भी वक्त है रब की रहमतों को हासिल कर लो, अभी भी वक्त है रब की खुशनुदी हासिल कर लो। और जो लोग रब की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं वो आज इस अमल इस वजीफे को लाजमी पढ़ें, वीडियो मुकम्मल देखें, समझ के पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज आसानियां ही आसानियां होंगी। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप तमाम हजरात ने दुआओं में हिस्सा भी लेना है, आमीन भी कहना है और रब को राजी करने की कोशिश भी करनी है। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए दुआओं में लाजमी शिरकत किया करें। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रजब की 17 तारीख और तीसरे बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ میں بھی दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब अस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों अस्तगफार कर लिया, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई दुश्मनों के शर से बचना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरी औलाद हो जाए, मैं साहिब औलाद हो जाऊं, कोई अपनी बहनों के रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है। अल्लाह वालों कोई ऐसे भी हैं जिनके कारोबार नहीं चल रहे, बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्क़त कर ली फिर भी कारोबार नहीं चल रहे, कोई किसी की जायदाद खा गया है। इस तरीके के सैकड़ों मसले हैं जो अल्लाह वालों हम लोगों के दरमियान चल ही रहे हैं। तो लिहाजा आज आप लोगों को जो अमल बताऊंगा आपने अपने मकसद को जहन में रख के उस अमल उस वजीफे को पढ़ना है। अब अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं, रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है, ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं, आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को
पढ़ कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाएं, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है,
یہ सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही ख़ास सूरत है, ये बहुत ही ख़ास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ बहुत ही अच्छे अंदाज में, मोहतात अंदाज में मांगनी है, क्योंकि बाज लोगों से दुआओं में गलतियां हो जाती हैं, यानी जल्दबाजी और अदब को छोड़ देते हैं, भूल बैठते हैं कि हम लोग रब के दरबार में बैठे हैं, रब से मुखातिब हैं, रब से मांग रहे हैं, हमें किस तरह से मांगना चाहिए। इसलिए अल्लाह वालों, सोच समझ के अपने हाजिर दिमागी के साथ ही दुआओं को मांगा करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि दुआ मोमिन का हथियार है। तो दोस्तों, अपने हथियार को सही तरह से, सही अंदाज में चलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाबियां आपका मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगी। लेकिन बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, बेअदबी से बचिएगा और बेअदबी करने का आपके ऊपर तसव्वुर भी ना गुजरे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने लाजमी इस तरतीब के साथ वजीफा पढ़ना है। कोई छोटा मोटा सदका लाजमी करिएगा। अच्छा, सदका करने की वजह क्या होती है? रब की तवज्जो हासिल करना, क्योंकि अल्लाह पाक को ये अमल बेहद पसंद है और अगर हम पर एक बार नजर करम हो जाए तो वो हमारी फिर पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। इसलिए सदका करने का कहा जाता है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, लाजमी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वजीफे को तरतीब और तरीकेकार के साथ पढ़िएगा। जो आपको बताए गए हैं, जिस तरह से बताए गए हैं उस तरीके से पढ़िएगा। छोटा मोटा सदका जरूर करिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। हमारी इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरीके से मुस्तनद वजीफे
وہ وظیفے جو کامیابی کی طرف آپ کی زندگیوں کو لے کر جائیں گے وہ لے کر حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.